क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। क्लोजिंग कैपिटल प्रेजेंटेड बाय ट्रेड बुल्स। अब ट्रेडिंग सबके बस की बात है। को पावर्ड बाय नेट प्रोटेक्टर। प्रोटेक्ट योर डिजिटल लाइफ। સ્વાગત ગુડ આફ્ટરનૂન આપ સૌ કોઈનું સ્વાગત। હું યશ આપની સાથે। વાસી ઉત્તરાયણના દિવસે ભારતીય માર્કેટ્સમાં એક્શન ભરપૂર રહ્યું છે અને હવે કઈ દિશામાં માર્કેટ જશે તે આજનું ક્લોઝિંગ નક્કી કરશે। તો આવો સમજીએ આજના ભારતીય માર્કેટ્સનું એક્શન અને આવતીકાલે શું થઈ શકે છે, બધા પર ચર્ચા કરીશું। શરૂઆત હેડલાઇન્સની સાથે। દિવસના તળિયે પહોંચ્યું બજાર। નિફ્ટીમાં ઉપલા સરોથી 150 પોઈન્ટ ઘટાડો, 23,150 નજીક કારોબાર। સેન્સેક્સમાં ઉપલા સરોથી આવી વેશબાજી। બેંક નિફ્ટીમાં પણ આવ્યું ઉપલા સરોથી દબાણ। 49,000 ને પાર કર્યા બાદ બેંક નિફ્ટીમાં 500 પોઈન્ટ જેટલો ઘટાડો। બાદમાં આવ્યો સુધારો। આઈસીઆઈસીઆઈ અને એક્સિસ બેંકમાં આવ્યો હતો ઘટાડો। સુસ્ત બજારમાં પણ પીએસયુ શેર્સમાં તેજી। એનટીપીસી, પાવરગ્રીડ, કોલ ઇન્ડિયામાં 3% સુધીની તેજી। બીએચઈએલ અને પીએફસીમાં પણ ખરીદદારીનું એક્શન। મિડ અને સ્મોલ કેપ શેર્સમાં સારી ખરીદદારી। વોડાફોન આઈડિયા 3 મહિનાની ઊંચાઈ પર। ઇન્ડસ ટાવરના શેરમાં પણ તેજીનું એક્શન। આજે બંધ થશે લક્ષ્મી ડેન્ટલનો આઈપીઓ। અત્યાર સુધીમાં 48 ગણો ભરાયો। એક્સપર્ટનું લિસ્ટિંગ ગેઇન માટે આઈપીઓ ભરવાની સલાહ। आओ सीधा आपने लई जईशुं अमारा इंटरेक्टिव वॉल पर। समझिए भारतीय मार्केट्सનું એક્શન। દિવસની શરૂઆત થઈ ત્યારબાદ ભરપૂર વોલેટિલિટી જોવા મળી। સારી મજબૂતી આવી। સારી મજબૂતી બાદ પ્રોફિટ બુકિંગ આવ્યું અને પ્રોફિટ બુકિંગ બાદ અત્યારે ફરી એકવાર તેજીનું એક્શન બનતું જોવા મળી રહ્યું છે। હવે આ જે વોલેટિલિટી છે તે બધાની વચ્ચે આજનું ક્લોઝ આપણા સૌ કોઈ માટે મહત્વનું છે। આપણે બહુ બેર મિનિમમ એક્સપેક્ટેશન રાખી છે નિફ્ટી પાસેથી। ગઈકાલના જે ડેઝ હાઈ હતા એટલીસ્ટ તેને નજીક અથવા તો પછી તમારા માટે 23,100 બે જગ્યાઓ બચે છે। નિફ્ટીએ આ બંનેને ક્લોઝિંગ માટે જાળવી રાખવાની છે। પહેલાં ડેઇલી ચાર્ટ્સ પર હું સમજાવી દઉં કઈ રીતનું તમને મોમેન્ટમ જે છે તે આવતું જોવા મળી રહ્યું છે નિફ્ટી માટે થઈને। તો નિફ્ટીમાં મેજર એક્શન તમે જુઓ। આજે દિવસની શરૂઆત થઈ। તમારું ઓપન જે છે તે 23,250 પર બહુ બ્રિલિયન્ટ ઓપનિંગ હતું। એ બ્રિલિયન્ટ ઓપનિંગ બાદ તમને જે છે તે પ્રોફિટ બુકિંગ આવતું જોવા મળ્યું। આ તમારા માટે ઓપનના લેવલ બને। પછી પ્રોફિટ બુકિંગ આવ્યું। પ્રોફિટ બુકિંગમાં તમે જે છે તે ઘટાડાના સંકેતો સાથે છેક નીચે 23,146ના લેવલ્સ બનાવ્યા હતા। આ ઇન્ટ્રાડે લોસ છે તમારા। ઇનફેક્ટ 23,100 જે તમે સરસ રીતે જાળવી રાખ્યું તે પણ બહુ જ સારી વાત કહેવાય। એટલે આ પરિસ્થિતિ અહીંયાથી ખાસ તમે જુઓ તો સૌથી સારામાં સારી વાત એ છે કે 23,100 અહીંયાથી મેઇન્ટેન થઈ રહ્યું છે। આપણા સૌ કોઈ માટે આ સારામાં સારી વાત ગણાશે। બીજું, આજે ઉપર 293 એટલે આપણી જે આ 350ની ટ્રેન્ડ લાઇન છે તે હજુ પણ રિસ્પેક્ટ નિફ્ટી આપી રહ્યો છે। એટલે જ્યાં સુધી 350ને ઉપર તમે ક્રોસ નથી કરતા નવી તેજી તો આપણે નથી જ કરવી। હજુ પણ એક વખત અઝમ્પશન જે છે તે નથી કરવા। એકવાર આ જે બોક્સ બની રહ્યું છે બોક્સને બહાર નિફ્ટી નીકળે પછી કંઈક આપણે ફોકસ ધરાવીશું, ત્યાં સુધી નહીં। તો અત્યારની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણા સૌ કોઈની નજર 23,350 પર છે। એ ક્રોસ કરે તો તે પછી 453 જે 10 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ તમારી થાય। અને ન્યૂનતમ સ્તરો પર હજુ પણ આ તમારા માટે થઈને 23,100 મેં જે તમને વાત કરી છે આ ટ્રેન્ડ લાઇન અહીંયાથી ખાસ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે। એટલે આ બે ટ્રેન્ડ લાઇનની વચ્ચે જ્યાં સુધી તમે છો અત્યારે વોલેટિલિટી બતાવતો રહેશે નિફ્ટી। ઇનફેક્ટ પોસિબલ એ પણ છે કે આવતીકાલે જે ગુરુવાર છે એક્સપાયરીનો દિવસ છે નિફ્ટી માટે, તો પોસિબલ છે કે આ રેન્જની અંદર 350થી 100ની વચ્ચે એટલે કે એવરેજ 200 થાય। 200 પર જ તમારી એક્સપાયરી થાય તેવા પૂરા એંધાણ સંકેતો અત્યારે ફિલહાલ જોવા મળી રહ્યા છે। 15 મિનિટના ચાર્ટ લઈ આવો। આજના કારોબારને સમજી લઈએ। આજના કારોબારમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે જે બોટમ બનાવવાની કોશિશ નિફ્ટી કરી રહ્યો છે તેમાં અત્યારે ફિલહાલ ઉપલા સ્તરોથી પ્રોફિટ બુકિંગ વારંવાર આવી રહ્યું છે। પહેલી કેન્ડલ તમે અહીંયાથી ખાસ જુઓ, શાર્પ સેલિંગ આવ્યું હતું સારી મજબૂતી બાદ, અને એ શાર્પ સેલિંગમાં સરસ બ્રેકઆઉટ જે આવ્યું હતું તે અહીંયાથી આવ્યું હતું લગભગ 10 વાગ્યા પહેલાં જ। સરસ મજબૂતી બાદ
પ્રોફિટ બુકિંગ અહીંયાથી શરૂ થયા, સાઇઝેબલ પ્રોફિટ બુકિંગ હતું અને અહીંયાથી તમને ટ્રેન્ડ ચેન્જ થતો પણ જોવા મળ્યો છે કે નીચે 150 તોડી દીધું હતું તમે અહીંયાથી ખાસ, અને ત્યાંથી પછી ફરી એકવાર ખરીદદારી આવી છે જેમાં તમે 250 આસપાસ અત્યારે ફિલહાલ કામ 200 આસપાસ કામ કરી રહ્યા છો, જે ઓલમોસ્ટ અહીંયા આગળ થાય આ લેવલ. સો અત્યારની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે હવે તમારા માટે જે રેઝિસ્ટન્સ બની રહ્યું છે તે વારંવાર 23,300 બની રહ્યું છે, પ્લસ સોમવારના તમારા હાઈ જે ઓલમોસ્ટ 340ના હતા, એટલે કે હું 350 રાઉન્ડ ફિગર કરી દઉં છું. સો 300-350 તમારા માટે હર્ડલ બની રહ્યા છે. વારંવાર નીચે અહીંયા 150 તમારા લો બન્યા છે, અહીંયા પણ તમે જુઓ તો 150 આસપાસની તમારી બાઇંગ આવી છે. સો ઇન્ટ્રાડે લો તમારા બની રહ્યા છે તે હિસાબથી 23,100-150 આ બે જગ્યા તમારા માટે સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ છે. એવરેજ કરો 200 થાય એટલે આવતીકાલની એક્સપાયરી લગભગ 23,200 પર થાય તેવા એંધાણ અત્યારે ફિલહાલ બની રહ્યા છે. 23,200 પર સ્ટ્રેડલ પણ થતી હોય તેવી પરિસ્થિતિ બની છે, કેમ કે કોલ પુટ બંનેના આંકડાઓ લગભગ લગોલગ છે. આવો સમજી લઈએ 23,200ના અહીંયાથી કોલ પુટની પરિસ્થિતિ, અને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની વાત કરીએ અહીંયાથી ખાસ. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના હિસાબથી તમને જોવા મળે છે આ છે તમારા માટે 23,200. અત્યારની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ ધીરે ધીરે પુટના આંકડા વધતા જઈ રહ્યા છે. આજની પરિસ્થિતિમાં આ ઓઆઈ ચેન્જ છે બાય ધ વે. સો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ચેન્જમાં તમને જોવા મળે છે કે અહીંયાથી ખાસ પુટની અંદર પરિસ્થિતિ બનતી જોવા મળી રહી છે અને કોલની પરિસ્થિતિ આટલી. સો આજે કોલમાં એડિશન સારું છે 300, 250 અને 200ની અંદર, પણ તમે જો ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ જોશો તો ત્યાં તમને જોવા મળશે એ જ પરિસ્થિતિ ખાસ બની છે અહીંયાથી ખાસ, તો એ નજરમાં રાખીશું. તો નિફ્ટીનું ઓવરઓલ સેટઅપ એવું કહે છે 23,200 મેક ઓર બ્રેક છે. 200 ને નીચે જેટલા હશો તમે તેના તરફ તમને ઘટાડો જોવા મળશે. વારંવાર પછી 200નું પુલ બેક પણ આવતું જોવા મળી રહ્યું છે, અને આ તરફ ઉપરની તરફ તમે જુઓ તો 300 આસપાસ જગ્યા બની રહી છે. હવે બેંક નિફ્ટી માટે એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેટઅપ જે છે તે અહીંયાથી ખાસ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. આપણે વારંવાર 49,000ને હિટ કરી રહ્યા છીએ. આજે તમે બીજી વખત 49,000ને હિટ કર્યું ઉપરના સરો પર, અને અહીંયા તમે હાઈ બનાવ્યા 49,083. હવે આ જે હાઈ બન્યા છે બહુ જ રસપ્રદ છે, ખાસ હું તમને સમજાવીશ. 49,000 તમે ગઈકાલે પણ હિટ કર્યું, ત્યાંથી નીચે બંધ આવ્યું. આજે પણ તમે 49,083 હિટ કર્યું. અત્યારે ફિલહાલ તમારો ક્લોઝ જે છે તે 48,700 ને આસપાસ આપણે છીએ, 48,800 આસપાસ છીએ. સો વારંવાર આ લેવલથી કંઈક સેલિંગ આવી રહ્યું છે. મતલબ આ 49,000ને ઉપર જે 49,000ના કોલ રાઇટર્સ છે તે બેંક નિફ્ટીને ટકવા નથી દેતા. ઉપર નાનકડું હર્ડલ તમારું છેક ઉપર 49,456 પર આવે છે. તો 49,000થી સેલિંગ આવવાનું રીઝન શું? તો રીઝન એ હોઈ શકે કે અહીંયાથી તમે જે છે તે ખાસ 49,000ને નીચે જવાની શરૂઆત કરી હતી અને અહીંયા તમે ક્લોઝ આપ્યો હતો. તો આવી સ્થિતિમાં આજે પણ 49,000ને ઉપર જ્યાં સુધી તમે બંધ નથી આપી દેતા ત્યાં સુધી પ્રોબ્લેમ, કેમ કે અહીંયા જે છે તે ટ્રેન્ડ લાઈન આવતી જોવા મળે 49,000ની, અને આ દિવસે તમે 49,000ને નીચે બંધ આપ્યું હતું. સો આના પણ તમારા જે ઓપન અને ક્લોઝના લેવલ છે એ પણ તમારે જોવા પડે, અને તે સીધા જ અહીંયા આવે છે. આ 10 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ ત્યાં કોઇન્સાઇડ થતી જોવા મળી રહી છે, અને એ લેવલ છે 456. તો હવે જ્યાં સુધી 456ને ઉપર તમે નથી જતા, બેંક નિફ્ટી અત્યારે નવી તેજી માટેની જગ્યા નથી બતાવતો તેવું તમારે સમજી લેવું જોઈએ. 49,000 બહુ મહત્વની જગ્યા. નીચે સપોર્ટ 2 દિવસથી તમે જે લઈ રહ્યા છો તે જગ્યા બને છે 48,500. તમારો ગઈકાલનો ક્લોઝ પણ 48,500ને ઉપરનો હતો, અને આજે પણ જો 48,500ને ઉપર તમે બંધ આપી દો છો, મારી ટ્રેન્ડ લાઇન તો 300 છે, 300 અહીંયાથી ખાસ મેન્ટેન થવું જોઈએ, પણ 48,500 પણ જો બંધ આપી દે છે તો સારી વાત ગણાશે. સો મારી એક્સપેક્ટેશન બહુ મોડેસ્ટ હતી બેંક નિફ્ટી પાસેથી, પણ પરફોર્મન્સ સો ફાર સારું બતાવ્યું છે બેંક નિફ્ટીએ. અને અત્યારે ફિલહાલ જે છે કોશિશ હજુ પણ ચાલી રહી છે બેંક્સમાં, પણ વોલેટિલિટી બહુ છે, તો આ પરિસ્થિતિને પણ તમારે ધ્યાન પર રાખવાની રહેશે. 15 મિનિટના ચાર્ટ પર જોઈ લઈએ. 15 મિનિટના ચાર્ટના હિસાબથી તમને જોવા મળશે અહીંયા ભરપૂર એક્શન બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. દિવસની શરૂઆત થઈ, પહેલી કેન્ડલ તમારી અહીંયાથી બની, શાર્પ મજબૂતી સાથે ખુલ્યા હતા, ત્યાંથી શાર્પ સેલિંગ આવ્યું, પણ અચાનક જ બાઇંગ આવતું જોવા મળ્યું, જેમાં તમે 49,000ને ઉપર ગયા. ફરી એકવાર ગઈકાલની જેમ 49,000થી સેલિંગ આવ્યું, શાર્પ સેલિંગ તમને અહીંયાથી આવતું જોવા મળ્યું, અને ત્યારબાદ સારું બાઇંગ આવ્યું. હવે આ અપડેટેડ ચાર્ટ નથી, પણ અપડેટેડ ચાર્ટ તમે જુઓ તો 49,000 તરફ જવાની આગેકૂચ કરવાની કોશિશ જરૂર થઈ રહી છે, જેમાં 48,780 આસપાસ, 800 આસપાસ તમે છો અહીંયા આગળ અપડેટેડ ચાર્ટના હિસાબથી. કોશિશ અહીંયા સુધી જવાની છે, સફળતા મળતી નથી. સપોર્ટ એરિયા તમારા પહેલાં આ છે 48,500. જુઓ તમે આજના લો તમારા બન્યા છે 522 એક્ઝેક્ટ, એટલા માટે 500 મેન્ટેન કરવાની કોશિશ, અને ત્યારબાદ મારી એક્સપેક્ટેશન 300-350ની બેંક નિફ્ટી પાસેથી બની રહી છે. આ છે 15 મિનિટના ચાર્ટ. હવે આવો અહીંયાથી ખાસ નજર કરી લઈએ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ પર. બેંક નિફ્ટીના ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં તમને જોવા મળી રહ્યું છે
કોલ 49,000 પર ખાસ્સા એવા છે અને એટલા માટે જ તમે 49,000થી બહુ જલ્દી આગળ નથી વધી રહ્યા, એ ખાસ ધ્યાન રાખો. નો ડાઉટ પુટનો સપોર્ટ સરસ છે 49,000 પર, પણ પછી 49,500ના અહીંયા કોલ પણ છે. એટલા માટે થઈને આ એક હર્ડલ રહેશે. એટલું આસાન નથી આની ઉપર બંધ આપવાનું. અને હું પણ નવી તેજી જે છે, ટેકનિકલી આમ 49,000ની વાત થાય છે આપણે, પણ મને કમ્ફર્ટેબલ લેવલ 50,000 લાગે છે બેંક નિફ્ટીમાં, કેમ કે જે પ્રકારની વેચવાલી આવી છે, એક વખત 50,000 જો આવીને ટકી જાય તો બરાબર કહેવાય. પણ હા, 49,000 પણ સારું લેવલ છે. જો એની ઉપર પણ બંધ આપી દે તો એ અચીવમેન્ટ કહેવાશે બેંક નિફ્ટી માટે થઈને. સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ તમને અહીંયા 48,000 પર જોવા મળી રહ્યો છે. આ આવતીકાલની એક્સપાયરી પૂરી થઈ જાય પછી તમે ધીરે ધીરે મંથલી એક્સપાયરી માટે તૈયાર થાઓ. અને આ જે છે તે બજેટ પહેલાંની મંથલી એક્સપાયરી છે, તો એ હિસાબથી પણ તમારે આ બધા જ એરિયા પર ફોકસ અહીંયાથી ખાસ રાખવાનું રહેશે. ચેન્જ બતાવી દો. ચેન્જના હિસાબથી તમે જોશો કે અહીંયાથી ખાસ પરિસ્થિતિ બનતી જોવા મળી રહી છે. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ચેન્જમાં આજે કોલમાં એડિશન આવ્યું છે. 49,000 પર સાઇઝેબલ કોલ આવ્યા છે અને આ તરફ તમે 900, 800, 700 બધામાં જુઓ. ખાલી પુટમાં થોડું 48,000 પર રાઇટિંગ થયેલું હતું, પણ હા, સૌથી વધારે કોલમાં જ એડિશન આજે તમને જોવા મળેલું છે. નજર રાખવાની રહેશે. તો આપણે વાત કરી લીધી નિફ્ટી બેંક નિફ્ટી બંનેના સેટઅપની. સેટઅપ પ્રમાણે ક્લિયર કટ ઇન્ડિકેશન છે. ઉપર એક હર્ડલ જરૂર છે, નો ડાઉટ. અત્યારે ફિલહાલ ખરીદદારી આવી જાય છે. ન્યૂનતમ સરોથી 200 ઉપર બંધ આપવાની કોશિશ પણ નિફ્ટી કરી રહ્યું છે, પણ તેમ છતાં પણ એક હર્ડલ છે ઉપલા સરોથી, જે સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે. આજનું ક્લોઝ બહુ જ જરૂરી, બહુ જ મહત્વપૂર્ણ. આગળ આપણે ચર્ચા કરીશું આપણે એક્સપર્ટ સાથે આજના ક્લોઝ પર, પણ એ પહેલાં એક બ્રેક લઈ લઈએ. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. આગળ વધીએ અને હવે ભારતીય માર્કેટ્સમાં જ્યારે તમને જોવા મળે છે ખાસ વોલ્ટિલિટી ભરપૂર. બેંક નિફ્ટી જુઓ ફરી એકવાર થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ બતાવી રહ્યું છે. 48,700 તોડવાની કોશિશ ફરી એકવાર. નિફ્ટી તમે જુઓ 23,200 આસપાસ પહોંચ્યું છે અને 23,200 અહીંયાથી ખાસ ફરી એકવાર રિક્લેમ કર્યું. હવે આજનું ક્લોઝ 23,200 ઉપર આવે તે ખરેખર જરૂરી બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. તો આ બંને જ સ્થિતિઓ પર આપણે નજર રાખવાની રહેશે. આગળ પછી આપણે એક્સપર્ટ પણ આપણી સાથે જોડાશે, તેમની સાથે ચર્ચા કરીશું. પણ મીનવાઇલ અત્યારે ફિલહાલ તમે જુઓ કે એક્શન ભરપૂર રહેતું જોવા મળી રહ્યું છે. નજર તમારે રાખવાની રહેશે. આગળ વધીએ અને બ્રોકરેજ હાઉસીસના રડાર પર આજે ઘણા બધા સ્ટોક્સ છે જે અમે તમને ખાસ લઈને આવ્યા છીએ. નવા જે સ્ટોક્સ છે તે બધા પર આપણે અહીંયાથી ખાસ નજર રાખીશું. 2-3 કાઉન્ટર્સ છે કે જેના પર બ્રોકરેજ રિપોર્ટ્સ આવતા જોવા મળેલા છે. સૌથી પહેલાં તો HDFC AMC પર જે રિપોર્ટ આવ્યો છે, નવા રિપોર્ટ્સ જે સામે આવ્યા છે તે તમને અહીંયાથી ખાસ અમે બતાવીશું. પ્રભુદાસ લીલાધર તરફથી ખરીદારીની સલાહ છે અને લક્ષ્ય કંઈક 4,700 રૂપિયા પર શેર HDFC AMC પર. HCL ટેક પર KR ચોકસી તરફથી હોલ્ડની સલાહ બની રહી છે અને લક્ષ્ય કંઈક અહીં 1,894 રૂપિયા પર શેર તમને જોવા મળી રહ્યા છે. તો આ ખાસ તમે ધ્યાન રાખો. ONGC પર તમે જોશો કે MK ગ્લોબલ તરફથી ખરીદીની સલાહ છે અને લક્ષ્ય કંઈક 330 રૂપિયા પર શેરના જોવા મળી રહ્યા છે. તો આ પણ તમે અહીંયાથી ખાસ ધ્યાન પર રાખો. ત્યારબાદ તમને જોવા મળશે ઓઇલ ઇન્ડિયા કે જેના પર MK તરફથી ખરીદારીની સલાહ બની રહી છે. લક્ષ્ય કંઈક 665 રૂપિયા પર શેરના છે. ક્રૂડના પ્રાઇસીસને લઈને સીધી અસર ઓઇલ ઇન્ડિયાને આવતી હોય છે, તો તેને પણ તમારે ધ્યાન પર રાખવાનું રહેશે. પોસિબલ અપસાઇડ કંઈક 43% તેઓ એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છે. IOC કે જેના પર પણ MK તરફથી ખરીદારીની સલાહ છે. લક્ષ્ય કંઈક 185 રૂપિયા એટલે કે 46% ઉપરના તેમણે પોટેન્શિયલ અપસાઇડના લક્ષ્ય આપેલા છે. BPCL અહીંયા પણ MK તરફથી ખરીદારીની સલાહ છે. લક્ષ્ય કંઈક 405 રૂપિયા પર શેર. તેઓ 50% ઉપર અપસાઇડ જોઈ રહ્યા છે. અહીંયા HPCL એટલે કે બધી જ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ, રિફાઇનરીઝ બધા પર તેમને રિપોર્ટ્સ આપેલા છે. HPCL પર તેમણે ખરીદારીની સલાહ 27% ઉપરના ટાર્ગેટ્સ આપ્યા છે 475 રૂપિયા પર શેરના. આ સિવાય તમે જુઓ ડિક્સન ટેકનોલોજીસ પર MK તરફથી ખરીદારીની સલાહ છે. 20,000ના ટાર્ગેટ્સ એમણે આપેલા છે. સો બહુ જ બુલિશ છે તેઓ અહીંયાથી ખાસ. આ સિવાય BSE બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર MBIT તરફથી ખરીદારીની સલાહ છે. કંઈક 7,000 રૂપિયા પર શેરના લક્ષ્ય એમણે રાખેલા છે. અને મારુતિ તરફથી તમે જુઓ તો IIFL તરફથી જે છે તે ખાસ મારુતિ પર સલાહ બની છે 13,800 રૂપિયા. આજે 12,000ની આસપાસ હતો અને ત્યાંથી પછી સ્ટોકમાં થોડું તમને ખાસ દબાણ આવ્યું એટલે 13,800ના ટાર્ગેટ્સ તમને બનતા જોવા મળી રહ્યા છે. તો મારુતિ પર પણ રિવ્યૂ આ પ્રમાણે ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે. નજર રાખવાની રહેશે. આગળ પછી આપણે એક્સપર્ટ સાથે પણ આપણે વાતચીત કરીશું, તેમને આપણે જોડી લઈએ. અને મીનવાઇલ તમે અહીંયાથી ખાસ જુઓ છો કે સ્ટોક્સ પર્ટિક્યુલરલી એક્શનમાં બનતા જોવા મળી રહ્યા છે, તેને ધ્યાન પર રાખી. હવે નિફ્ટીના ટોપ ગેઇનર્સ અને લૂઝર્સ પર એક વખત નજર કરી લો. ટોપ ગેઇનર્સ અને લૂઝર્સ પર તમને અહીંયાથી ખાસ જોવા મળશે કે 3.5% આસપાસની ખાસ મજબૂતી જોવા મળી રહી છે અને ખાસ તેમાં 220 પોઈન્ટ આસપાસની પરિસ્થિતિ બનતી જોવા મળી રહી છે. NTPC 3.5%
આસપાસ 3.25% આસપાસની મજબૂતી જોવા મળી રહી છે, તો ત્યાં પણ સારું એવું એક્શન બનશે. પાવર ગ્રીડ અહીંયા 3.25% આસપાસની પરિસ્થિતિ બની રહી છે, તો ત્યાં પણ ખાસ એક્શન રહેશે. તો આ સ્ટોક પર તમારે નજર પર રાખવાનો રહેશે. આ સિવાય તમે જુઓ તો અહીંયાથી ખાસ પરિસ્થિતિ બની રહી છે. 2-3 સ્ટોક્સ છે કે જેમાં પોઝિટિવ એક્શન બનતું જોવા મળી રહ્યું છે, જેમાં પણ નજર રાખો. તો આ 2-4 કાઉન્ટર્સ છે. બ્રોકરેજ રિપોર્ટ્સને લઈને પણ જે કંઈ સ્ટોક્સ છે તેમાં પણ એક્શન તમને બનતું જોવા મળે છે. ખાસ અહીંયાથી ખાસ પરિસ્થિતિ આ બધા જ કાઉન્ટર્સમાં, તો તેના પર પણ આપણે નજર રાખવાની રહેશે. આ સિવાય આજ ખાસ તમે જુઓ તો બીજા બધા સ્ટોક્સ પણ છે કે જેમાં તમને પરિસ્થિતિ સારી બનતી જોવા મળી રહી છે. ટ્રેન્ડ તમે જુઓ, નિફ્ટીના ટોપ ગેનર્સમાંથી ટ્રેન્ડ જોવા મળશે 3.5% આસપાસની મજબૂતી. એનટીપીસીમાં તમે જુઓ છો 3.5%ની મજબૂતી છે. પાવર ગ્રીડ તમે જુઓ કે જેમાં પણ તમને સારી મજબૂતી જોવા મળી રહી છે 0.5% આસપાસ. કોટક બેંક 2.5% આસપાસની મજબૂતી છે. ટેક મહિન્દ્રા 0.5% આસપાસની મજબૂતી તમને બનતી જોવા મળી રહી છે, તો તેને પણ ધ્યાન રાખો. અચ્છા, વેચવાલી ક્યાં છે? વેચવાલીમાં કંઈક મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા તમને જોવા મળશે કે જેમાં 3% આસપાસની વેચવાલી જોવા મળી રહી છે. ટોપ લૂઝિંગ કાઉન્ટર્સમાં બજાજ ફિન્સર્વમાં તમને કંઈક 2.5% આસપાસની વેચવાલી જોવા મળશે. એક્સિસ બેંક 2.5%ની વેચવાલી છે. બજાજ ફાઇનાન્સ 2% અને શ્રીરામ ફાઇનાન્સમાં 2%ની વેચવાલી તમને જોવા મળી રહી છે. તો આ બધા જ સ્ટોક્સ ધ્યાન રાખો. આવા માર્કેટમાં આજે ન્યૂજેન સોફ્ટવેર એક સ્ટોક છે કે જેમાં 12.5%ની જબરદસ્ત અપમૂવ આવી છે. 1768 પર સ્ટોક આવી ગયો છે. બ્રિલિયન્ટ અપમૂવ સ્ટોકમાં જોવા મળી અને 52 સપ્તાહના ઉચ્ચતમ સ્તરો અહીંયા ખાસ બની ગયા છે. વીઆઈપીમાં 52 સપ્તાહના ન્યૂનતમ સ્તરો બની રહ્યા છે. નેટવર્ક 18માં ન્યૂનતમ સ્તરો. સેલો, એલગી ઇક્વિપમેન્ટની અંદર વેચવાલી છે, એટલે અહીંયા 52 સપ્તાહના ન્યૂનતમ સ્તરો બની રહ્યા છે. સનોફી છે. આ બધા સ્ટોક્સમાં પણ તમને ભરપૂર એક્શન રહેતું જોવા મળી રહ્યું છે, તો તેના પર પણ તમારે જરૂર નજર રાખવાની રહેશે. आगे बढ़िए, अपनी साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंटना अंशुल जैन जोड़ाई रहा है. अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज. और मकर संक्रांति का त्यौहार आज खत्म होने जा रहा है. हमारे यहाँ पे गुजरात में वासी उत्तरायण, मतलब एक दिन के बाद जो मकर संक्रांति होती है उसके बाद वाला दिन भी सेलिब्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसकी एक्शन तो है, लेकिन मार्केट में हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है. और कल तेज़ी आई, आज फिर से एक बार थोड़ा सा पॉजिटिव एक्शन देखने मिला, लेकिन ऊपरी स्तरों पर कहीं ना कहीं हम रुक रहे हैं. पर्टिकुलरली अगर निफ्टी के लिए देखें तो ये 23,300 बन रहा है, और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 49,000 जो है वो बहुत ही अहम लेवल बन रहा है. इन दोनों को कैसे देखें सर, कैसे ऑब्जर्व किया जाए? देखिए, जिस हिसाब से पुल बैक आना था उस हिसाब से पुल बैक में स्ट्रेंथ तो नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 23,265 प्रोटेक्ट होना जरूरी है निफ्टी पे, 23,265 प्रोटेक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके नीचे फॉलो थ्रू मूव भी नहीं मिला है. अब कल और आज हम निफ्टी पे इनसाइड बाहर रहे हैं. परसों की कैंडल के अंदर तो ये अपने आप में कंसोलिडेशन दिखा रहा है. प्रोबेबली एक आध सेशन और कंसोलिडेट करके हम 23,265 जैसी ऊपर में निकालेंगे. एक बाउंस बैक 23,500 23,400 की जोन तक बन जाएगा. 23,500 हमको लग रहा है कि आ जाएगा. वहीं बैंक निफ्टी में जो सेलिंग रेंज थी वहां से 48,800, वहां से किसी तरह का फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है. हालांकि लास्ट 2 घंटे में आप देखेंगे तो थोड़ी सी सेलिंग है, लेकिन मॉर्निंग बाइंग के हिसाब से उतना वॉल्यूम नहीं है. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वीकली वीवैप भी प्रोटेक्ट हो रहा है, डेली वीवैप की भी ऊपर क्लोज कर रहे हैं, और 2 दिन जहाँ से सेलिंग आनी चाहिए थी 48,800, वहां से सेलिंग नहीं आई है. तो मोस्ट लाइकली बेयर्स जो हैं 48,800 पे फेल हो रहे हैं. कल के सेशन में अगर हम 48,850 के ऊपर सस्टेन कर लिए तो फिर एक पुल बैक रैली सीधी 49,600 तक बनती हुई दिखेगी. तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में यहाँ से ग्रॉसली ओवरसोल्ड है, एक बाउंस बैक जरूर देंगे. सेक्टर स्पेसिफिक सर काफ़ी ज़्यादा एक्शन है आज अगर हम देखें तो, और 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर थोड़ा सा जिसे बोलते हैं कि वॉल्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है. अब इसमें सबसे पहले सरकारी स्टॉक्स आते हैं. बजट की थीम के साथ बाइंग शुरू हो चुकी है. इसमें भी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, आज आप देखें मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को. कल भी ऐसा हुआ था, लेकिन परसों पिटाई भी बहुत ज़्यादा हुई थी. सरकारी स्टॉक्स की थीम को पहले टेस्ट कर लेते हैं सर. बजट की वजह से खरीदारी आ रही है, आपको पसंद नहीं है बहुत टाइम से, थोड़ी बहुत जगह जो मिल रही है, कैसे देखा जाए इनको? देखिए, सरकारी स्टॉक में आपको याद होगा मैं बजट से कहते आ रहा हूँ कि यहाँ पे आपको माल बेच के चलना चाहिए. सारे में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है और उसी कड़ी में हम गिर रहे हैं. प्री बजट रैली भी डेवलप होती हुई नहीं दिख रही है.
तो यहाँ पे सरकारी स्टॉक स्पेशली अगर आप रेलवे और डिफेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी अभी काफी पिटाई बची हुई है, करीब 20% 22% हम प्रोबेबली पोस्ट बजट के बाद करेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सरकारी कंपनियों से आप जितनी जल्दी निकलेंगे, हर पुल बैक में एग्जिट कर लेंगे, आपके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पे नए लोज बनते हुए दिखेंगे। तो पर्टिकुलरली जो ये आपके रेलवे स्टॉक हैं, डिफेंस स्टॉक हैं, शिपिंग स्टॉक्स हैं, इन पे मैं पर्टिकुलरली बेरिश हूँ। कोई भी रैलीज मिलती है 50 डे मूविंग एवरेज तक, तो ये अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग से निकल के, मतलब अब ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो है नहीं, बट जो है भी, मतलब आप रैलीज पे लॉन्ग पे निकलने की कोशिश कीजिए, मैं नए लोज बनेंगे। સો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે જ્યાં સુધી વાત આવે છે સરકારી સ્ટોક્સની નજર રાખવાની રહેશે। अब सर 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर न्यूज़ के बेस पर और थोड़ा सा लेवल के बेस पर भी एक्शन देखने आज मिला था, और उसमें से एक है मारुति। आज 12,000 को क्रॉस करने के बाद अगेन एंड अगेन थोड़ा सा वहाँ से सेलिंग आ रहा है, 12,200 तक गए थे। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी यहाँ पर आई है, थोड़ा सा मारुति पर एक्शन इस वजह से भी देखने मिला हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम से नहीं चला है स्टॉक, फिर से एक बार 12,000 से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं सर मारुति के चार्ट्स? देखिए, मारुति में एक रेंज थी 11,400 और 10,700 की, जिसके ऊपर बढ़िया ब्रेकआउट आया। बहुत वीक पुल बैक था, यानी बेयर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। कल के सेशन में ब्रेकआउट था, आज फॉलो थ्रू मूव लेने की कोशिश की, लेकिन नियर लोज आके क्लोज कर रहा है। बट मोस्ट लाइकली यहाँ से बाउंस बैक 12,375 से 12,800 के बीच में बनना चाहिए। तो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है 11,850 11,800 की रेंज में बाइंग ट्राई की जा सकती है। તો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે। મારુતિ અહીંયાથી ખાસ જોવા મળી રહ્યું છે, નજરમાં રાખવાની રહેશે। આગળ વધીએ, બીજા અન્ય સ્ટોક્સ કે જેના પર પણ આપણે ફોકસ કરવાનું છે અહીંયાથી ખાસ, જેના પર ફોકસ અત્યારે ફિલહાલ કરી। પ્રાઇવેટ બેન્ક્સમાં આજે હોડ ચાલી છે, કયા સ્ટોકમાં સારી મજબૂતી છે, કયામાં નથી, તે તમે જુઓ તો પ્રાઇવેટ બેન્ક્સ છે કે જે સૌથી વધારે અત્યારે ફિલહાલ વોલેટાઇલ બનતા જોવા મળી રહ્યા છે। એમાં પણ તમે જુઓ કોટક बैंक કંઈક 2% ऊपर है। आपने थोड़े टाइम पहले सर कोटक बैंक पे एक कॉल दिया था, ब्रिलियंट मूव आज देखने मिल रही है, कैसे देखे सर? 1780 1790 फिर से एक बार आया है स्टॉक। देखिए, कोटक बैंक मेरे हिसाब से बेहतरीन मूव है और ये अब मूव कंटिन्यू रहेगी। 1853 और उसके बाद रेंज का हाई 2000, ये दोनों टारगेट मिलने चाहिए। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आज से, अगर आपका नजरिया 6 महीना 1 साल का है, तो बिल्कुल कोटक बैंक को आपको एक्युमुलेट करके चलना चाहिए। डेफिनेटली, કેમ કે આજે પ્રાઇવેટ બેન્ક્સમાં સૌથી સારી મૂવ જે છે તે કોટક બેંકમાં આવી છે, એટલા માટે સર સાથે આપણે અહીંયાથી ખાસ ચર્ચા એ પણ કરી। अच्छा, और एक स्टॉक बैंक्स में से मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो है SBI। आज मूव अच्छी थी, प्रॉफिट बुकिंग नो डाउट आई स्टॉक में, लेकिन इंट्राडे लोज जो बने 750, वहाँ से फिर से एक बार अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने मिली है। क्या जो टर्न अराउंड स्टोरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर से एक बार आने की शुरुआत हो सकती है SBI में? अभी 754 पर है, आज के हाईज हमारे बने थे 758 के। क्या फिर से एक बार खरीदारी के संकेत आपको देखने मिल रहे हैं SBI में? देखिए, मेरे हिसाब से SBI थोड़ा सा वीकर नोट पे ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तर से अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन 731 का मेजर सपोर्ट जोन था, वहां से जो बाउंस बैक है वो ऑन द वीकर साइड है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से फुल बैक जो है 20 डे मूविंग एवरेज तक कंटिन्यू हो सकती है। मोस्ट लाइकली 20 डे मूविंग एवरेज तब तक थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो 780 तक हम फुल बैक दे सकते हैं SBI पे। बट इवेंचुअली जब हम 731 तोड़ेंगे तो 650 तक का टारगेट ओपन अप होगा। तो मैं SBI पे बहुत बुलिश नहीं हूँ, सेल-ऑन रैलीज की सलाह दूंगा। ક્લિયરલી, તો અત્યારે ફિલહાલ વ્યૂ આ પ્રમાણે જ અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે, નજર રાખવાની રહેશે। નિફ્ટીના ટોપ ગેનર્સ લૂઝર્સની પણ આપણે અહીંયાથી ખાસ વાત કરી કે જેમાં એક M&M પણ છે, એક્સિસ બેંક પણ છે કે જેમાં પણ ખાસું એવું एक्शन તમને આજના દિવસે બનતું જોવા મળેલું છે। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व सर दोनों ट्विंस में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, कोई ऑब्जर्वेशन इन पे? क्योंकि ये फिन निफ्टी को भी आज काफ़ी ज़्यादा दबाव में रखा है इन दोनों स्टॉक्स ने, और फिन निफ्टी इसी वजह से शायद पूरा दिन रेड जोन में ही रहा है। कैसे देखे सर बजाज फाइनेंस, फिनसर्व दोनों में प्रॉफिट बुकिंग आज देखने मिली हमें? ये बजाज फिनसर्व हो या बजाज फाइनेंस, दोनों के सिमिलर पैटर्न है। नीचे के लेवल से 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर आए और वापस से पुल बैक लिया और वीकर नोट, और आप फॉलो थ्रू मूव देने की बारी है। तो 1-2 दिन 4 दिन और कंसोलिडेशन रह सकता है, बट मोस्ट लाइकली ये राइजिंग मूविंग एवरेज का स्प्रेड प्रोटेक्ट होगा। तो कहीं भी 7-8% की अपसाइड दोनों काउंटर में यहाँ करंट और लेवल से मिल सकती है। अगर जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है
करंट मार्केट प्राइस पे एटलीस्ट 50% फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर लेना चाहिए। अगर डिप मिली तो ऐड करेंगे, नहीं मिली तो जितनी पोजीशन है उतने पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ઓકે, તો બજાજ ફિનાન્સ ફિનસર્વ બંને માટેનો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ રહેતો જોવા મળી રહ્યું છે, નજર રાખવાની રહેશે। नेक्स्ट स्टॉक सर, आज जो हमने काफ़ी अच्छा तेज़ी का एक्शन देखा है वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। 52 वीक हाई की कैटेगरी में ये इकलौता स्टॉक जो है वो आ रहा है और अमेजिंग अपमूव देखने मिली। ये स्टॉक के चार्ट्स अगर आप थोड़े से बैक ट्रैक करेंगे अंशुल जी, बहुत ही ब्रिलियंट मूव सिंगल डे कैंडल दिखाता है ये। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कुछ 1-2 हफ्ते पहले, और आज फिर से एक बार सिंगल डे इतनी बड़ी अपमूव, मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है कोई स्टॉक जो है उसके वॉल्यूम को कॉर्नर करने की कोशिश यहाँ पर बार बार कर रहा है और काफ़ी अच्छी अपमूव देखने मिलती है न्यूजेन सॉफ्टवेयर साहब। देखिए काउंटर अब एक्सटेंडेड लग रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कह सकते कि अभी रिवर्स करेगा या बेयरिश हो रहा है, बट अब मोमेंटम चेज करने की बात हो जाएगी और मोमेंटम चेज करना काफी रिस्की हो जाता है। तो आज का लो कहीं भी 1580 के आसपास अपडेटेड स्टॉप लॉस रहेगा। इस स्टॉप लॉस को लगा के कोई लॉन्ग करता है तो 2000 रुपए तक मिल सकता है, बट क्या मैं इस लेवल पे स्टॉक को लॉन्ग करना पसंद करूंगा? तो उसका जवाब होगा ना, क्योंकि 7 से 8 बेस इसके बन चुके हैं और जनरली थर्ड बेस के बाद फेलियर रेट बढ़ने लगता है। तो मैं इस ब्रेकआउट को प्ले करना पसंद नहीं करूंगा, बट अगर किसी को प्ले करना भी है तो 1580 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले ले और 2000-2050 तक के लिए लॉन्ग प्ले कर ले। 2000 ने ऊपर પછી આગળ જવા માટે થઈને આ સ્ટોકને તમે પ્લે કરી શકો છો, તો નજર રાખો બજાજ ફિનસર્વ ફાઇનાન્સ બંને પર। આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ ચર્ચા કરી આપણે, અને ત્યારબાદ ન્યુજેન સોફ્ટવેર પણ છે કે જેના ઉપર પણ તમારું ફોકસ આ પ્રમાણે બનવું જોઈએ। તો ન્યુજેન સોફ્ટવેરને લઈને પણ રેકમેન્ડેશન્સ આજના દિવસે હતા, નજર રાખીએ। આવો હવે માર્કેટના ક્લોઝ પર ફટાફટ નજર કરી લઈએ એક વખત। આજનું ક્લોઝ એવું જણાવે છે આપણને કે નિફ્ટી જે છે તે 23,200 ને ઉપર બંધ થઈ રહ્યો છે, સારી વાત કહેવાય। ઇનફેક્ટ બહુ જ સારું ક્લોઝ આજે જોવા મળી રહ્યું છે નિફ્ટીનું। બેંક નિફ્ટીનો ક્લોઝ પણ ગ્રીન ઝોનમાં મામૂલી લીલા નિશાન સાથે છે 48,780 આસપાસ। બેંક નિફ્ટી થોડું ક્રુશિયલ ક્લોઝ છે એમ કહી શકાય, કેમ કે ગઈકાલના તમારા જે લેવલ્સ હતા ક્લોઝના, ગઈકાલના ક્લોઝ હતા 48,729, તેનાથી થોડા ઉપર જ છો તમે, બહુ વધારે ફરક નથી, અને એડજસ્ટ થતાં કદાચ પોસિબલ છે તેના નીચે પણ તમે આવી જાઓ। મિડ કેપ સ્મોલ કેપમાં ખરીદારી સારી હતી, સો એ એક ફોર અ ચેન્જ ડિફરન્સ આપણને જોવા મળ્યો, પણ આઈડિયલી બાકી બધા જ સેટઅપના હિસાબથી તમે જુઓ તો માર્કેટ જે છે તે લીલા નિશાનમાં બંધ થતા જોવા મળી રહ્યા છે। છેલ્લે ખરીદારી સારી જોવા મળી સરકારી સ્ટોક્સમાં, CPSEમાં, રિયલ એસ્ટેટ સ્ટોક્સ સારા ચાલ્યા 1.25% આસપાસ। ઇન્ફ્રા સ્ટોક્સમાં સારી ખરીદારી, L&T તમે જોયું હોય જબરદસ્ત ખરીદારીનું એક્શન બજેટ પહેલાં આવી ગઈ છે થીમ હવે। કોમોડિટીઝ, IT સ્ટોક્સ છેલ્લે ખરીદારી થઈ, ટર્ન અરાઉન્ડ સ્ટોરી છે આઈટીમાં, બહુ જ સરસ ન્યૂનતમ સ્તરોથી રિકવર થયો છે। સેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સ આગળ આપણે ચર્ચા કરીએ। આ સિવાય વેચવાલી હતી મીડિયા, હેલ્થકેર, ફાર્મા અને ઓટો, આ 4 સેક્ટરમાં તમને જબરદસ્ત વેચવાલી જોવા મળી છે। ઇનફેક્ટ ફિન નિફ્ટી આજના દિવસે નર્વસ હતો, જેની પણ આપણે ચર્ચા કરી, બજાજ ફાઇનાન્સ ફિનસર્વને કારણે થઈને આ પણ નર્વસ રહેતો તમને જોવા મળેલો હતો। વોલ્ટિલિટી છેલ્લે બંધ થઈ છે 15.30 પર, અને આ છે સોફાર ભારતીય માર્કેટ્સનું ક્લોઝ। રેપઅપ એવું કહે છે આપણને કે ઓલમોસ્ટ નહીં નફો નહીં નુકસાનમાં ગયા છે માર્કેટ્સ, કેમ કે 24 સ્ટોક લીલા નિશાનમાં ગયા અને 26 સ્ટોક લાલ નિશાનમાં ગયા છે। ઓલમોસ્ટ નેક ટુ નેક ફાઇટ હતી આજે, એટલે હવે આવતીકાલે એક્સપાયરીનો દિવસ છે અને એક્સપાયરીના દિવસ પહેલાં તમને જોવા મળે છે એકદમ શાંતિમય ક્લોઝ થયું છે। આવતીકાલનો દિવસ જે છે તોફાન ભરેલો રહે તેવું લાગે છે, પણ હા ક્લોઝ બહુ સારું થયું છે નિફ્ટીનું। 23,200 ને ઉપરનો ક્લોઝ એટલે એ સારી વાત ગણાય, અને 48,751નો ક્લોઝ બેંક નિફ્ટીનો ગઈકાલના ક્લોઝની સામે મામૂલી મજબૂતી, તે પણ સારી વાત આઈડિયલી ગણાય। આપણી જે બેઝિક કન્ડિશન્સ હતી, અમુક લેવલ્સની વાત કરી હતી આપણે કે ભાઈ 23,100, 23,200 બંનેને ઉપરનો ક્લોઝ તો એ નિફ્ટી આપી રહ્યો છે, અને 48,500 અને 48,300ના ક્લોઝની આપણે વાત કરી હતી બેંક નિફ્ટીમાં, તે પણ તમને મળી રહ્યું છે। તો સતત 2 દિવસ સારા ક્લોઝ સાથે તમને જે છે તે નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટીમાં કારોબાર જોવા મળેલા છે। આજનું ક્લોઝ તમને સારું કોન્ફિડન્ટ જોવા મળી રહ્યું છે। अंशुल जी बताइए आज के क्लोज को कैसे देखेंगे? 23,200 की क्लोज इनफैक्ट बहुत अच्छी मानी जाए, क्योंकि जिस प्रकार से पिटाई हुई थी निफ्टी की, उसके बाद फाइनली बॉटम बनाने की कोशिश में आज दूसरा ग्रीन जोन का क्लोज हमें देखने मिला है, और बैंक निफ्टी भी 48,751 पर बहुत ही पतली लीड के साथ, लेकिन फिर भी हाँ ग्रीन जोन में जरूर बंद हुआ है। ये भी देखिए क्लोजिंग बहुत बेहतरीन आई है, मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि ये बेहतरीन क्लोजिंग है, क्योंकि इतनी रिलेंटलेस सेलिंग रही थी लास्ट वीक में कि यहाँ पे
एटलीस्ट ये 2 दिन मार्केट ने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है। और एफआईआई का डेटा अगर आप देखेंगे तो एफआईआई का डेटा अभी पलटा नहीं है, क्योंकि वहां शॉर्ट कवरिंग जब तक ट्रिगर नहीं होती है बड़ी अप मूव नहीं मिलेगी, वहां जब तक फ्रेश शॉर्ट्स ओपन नहीं होते हैं बड़ी डाउन मूव नहीं मिलेगी। अब जाएगा उनके पास जगह भी नहीं है, तो यहाँ से हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर 1-2 दिन और मार्केट कंसोलिडेट कर गया तो फिर थोड़ी सी नर्वसनेस क्रीप इन होगी और फिर शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला चालू होगा। और जब ये सिलसिला चालू होगा तो मार्केट में अच्छी रैली डेवलप होगी। तो लेवल वाइज 23,265 के ऊपर क्लोज करता है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता कि आप BTST भी कैरी कीजिए और मार्केट में लॉन्ग पोजिशंस लेके जाइए। बट चूंकि नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कल के सेशन में देखेंगे अगर 23,265 के ऊपर क्लोजिंग आती है या सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर जरूर हम बाय कॉल्स इनिशिएट करेंगे। बट जो आपका सवाल था कि क्या क्लोजिंग को अच्छी तरीके मतलब ब्राइट लाइट में या पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए, तो बिल्कुल ये पॉजिटिव क्लोजिंग है और पूरी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि अगले 1-2 दिन में फॉलो थ्रू मूव ऑन दी अपसाइड मिलेगा। ડેફિનેટલી સો નવી અપસાઇડ માટેની તૈયારીઓ શરૂ કરવી જોઈએ આપણે સૌ કોઈ અહીંયાથી, કેમ કે એક્શન ભરપૂર આજના દિવસે જોવા મળેલું છે, નજરમાં રાખીશું। આગળ વધીએ। 2-3 स्टॉक्स ऐसे थे सर जिनमें रिजल्ट का रिएक्शन आया था, उसमें से एक है सुला विनयार्ड्स। स्टॉक काफ़ी अच्छा चला, 390 तक गया था रिजल्ट्स के बाद। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके चक्कर में डेज लो के नज़दीक बंद हुआ है 375 पर। 0.5% की तेज़ी आज देखने मिली, लेकिन वॉल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी नंबर्स के बाद। आप कैसे देखेंगे सुला विनयार्ड्स? नंबर्स अच्छे आए थे एक तौर पर देखने जाए तो, और स्टॉक में वॉल्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज की रेंज बहुत ही ब्रॉड रही सुला विनयार्ड्स में। सर देखिए, अगर आपने वो निखिल कामत का पॉडकास्ट देखा होगा जिसमें उन्होंने लिकर एक्सपर्ट्स को बुलाया था, जिसमें एक रेडिको खैतान का मालिक था और ऐसे थे, तो उस पॉडकास्ट को अगर आप ध्यान से सुने तो वो बहुत क्लियरली आपको बताता है कि इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं ये मान के चल रहे हैं कि ये इंडस्ट्री जिस स्तर पे है, पूरी लिकर इंडस्ट्री, ये अगले 10 साल में इसका वॉल्यूम एटलीस्ट डबल हो जाएगा। तो उस हिसाब से इस सेक्टर की कंपनीज में आपको अच्छे रिजल्ट और पॉजिटिवनेस देखने मिलेगी। बट चूंकि शॉर्ट टर्म में एक्सटेंडेड था, काउंटर एकदम वर्टिकली चला था आईपीओ के बाद 300 रुपए से 680 रुपए तक, तो उसी लिहाज से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन के मोड में है। बट इवेंचुअली 1-2 क्वार्टर और लगेंगे इस स्टॉक को कंप्लीटली बॉटम आउट होकर रिवर्स करने में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अब यहाँ से 350-360 की रेंज में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऊपर में कहीं भी ये स्टॉक 680 रुपए आपको आराम से दे सकता है। ઓકે, તો આગળ જતાં હજુ પણ તમને એક્શન બતાવી શકે છે, એટલે સુલા વિનયાર્ડ્સ અહીં આપણે ખાસ વાત કરી કે જેમાં તમને તેજીનું એક્શન જોવા મળી શકે છે। સવારે પરિણામો આવ્યા હતા જેના પણ તમને સમાચારો અમે બતાવ્યા હતા સવારે, અને ત્યારબાદ સ્ટોકમાં હા પ્રોફિટ બુકિંગ જરૂર આવ્યું છે, પણ હા તેજીના સંકેત હજુ પણ બની શકે છે। આવો જ એક સ્ટોક હતો શોપર સ્ટોપ, જેના સમાચારો પણ અમે બતાવી દઈએ। ખાસ स्टॉक में परिणामों आया था सर। शॉपर स्टॉप के नंबर्स आए थे और नंबर्स आप देखिए तो उनकी आप रेवेन्यूज़ 12% बढ़ी थी, अगर प्रॉफिट देखें तो 42% बढ़ा था, उनके एबिटा जो है वो 13% बढ़े थे और मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा एक्शन रहा 20 बेसिस पॉइंट्स का। अगर आप चार्ट देखिए शॉपर स्टॉप के, आज ऊपर की ओर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। ऐसे में आज के हाइज जो बने 688 के, उसे कैसे देखा जाए सर? क्योंकि 618 से 688 का रेंज और कैंडल जो आज बनी है इंट्राडे की, वो इतनी अच्छी तो नहीं लग रही है चार्ट्स पर शॉपर स्टॉप। देखिए, शॉपर स्टॉप में अगर आप ब्रॉडर वीकली चार्ट देखेंगे तो बहुत समय से एक रेंज चल रही है, ऊपर 820, नीचे 570 से रिवर्स किया है, अच्छे वॉल्यूम से रिवर्स किया है। तो ये आपको एक बार डिप्स में कहीं भी वापस से 590-570 की जोन में मिलता है तो एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। बॉक्स के लो से जब चलना चालू करेगा तो बॉक्स के हाई तक जाएगा और बॉक्स का हाई 820 रुपए पे है। तो यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर डिप्स पे आप कहीं भी 570 के आसपास बाई करते हैं, एक 20 रुपए का रिस्क लीजिए, 550 का स्टॉप लॉस दीजिए, ऊपर में 820 तक का टारगेट मिल सकता है। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, पैटर्न अच्छा है, बस बॉक्स लो पे मिले तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से एंट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, एकदम लोएस्ट रिस्क एंट्री होगी और प्रॉफिट आपको 1:8, 1:10 तक का ट्रेड मिल जाएगा। तो 570 के राउंड बाइंग करना चाहिए। 570 સુધી આગળ જતાં તમને એક્શન બતાવી શકે છે, તો તમારી નજર હોવી જોઈએ। અહીંયા ચાર્ટ્સની પણ આપણે વાત કરી છે ખાસ, અને આજે રિઝલ્ટ્સ પણ આવ્યા હતા તો તે પણ આજના દિવસે તેના કારણે ફોકસમાં રહેતો જોવા મળ્યો હતો।
और 52 वीक हाई लो वाले स्टॉक्स से अगर मैं आगे आऊं तो कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स थे और एक नैरेटिव भी है सर मार्केट में कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन से थोड़ा सा हटकर अब जब मार्केट ने हालत ख़राब की है थोड़ी, तो एएमसी स्टॉक्स पे फोकस बढ़ा है। आज यूटीआई एएमसी में काफ़ी ज़्यादा बज़ बना था। इसके अलावा एचडीएफसी एएमसी पर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं। क्या आपको लगता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का और फंड मैनेजर्स का काम आने वाले दिनों में थोड़ा बढ़ने वाला है? कोई एएमसी कंपनी आपको पसंद है यहाँ पर? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक आधा रखता हूँ, आधा नहीं रखता हूँ। मैं इस चीज से तो इत्तेफाक रखता हूँ कि एएमसी का काम बढ़ेगा और लोग एएमसी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जिसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है वो जाके एएमसी में डाल देगा, ऐसा नहीं होगा। एएमसी में नए फ्रेश इन्वेस्टर फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं जो नया पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब लोग या जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो लोग एएमसी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जिसके पास थोड़ा भी टाइम है और थोड़ा भी इंटरेस्ट है वो हमेशा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आने की कोशिश करेगा। तो धंधा दोनों का बढ़ेगा, ब्रोकर का भी बढ़ेगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेवल पे और एएमसी का भी बढ़ेगा म्यूचुअल फंड के लेवल पे। तो एएमसी में एचडीएफसी एएमसी का रिजल्ट भी आया, तो ठीक ठाक आया रिजल्ट, उतना मतलब स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए था। पुल बैक पे मेरे को लग रहा था कि 50 डे मूविंग एवरेज 42-46 पे है, 4250 वहां तक खींच लेगा, बट 20 डे मूविंग एवरेज पे अटक गया। बट वॉल्यूम अच्छा था, 374% वॉल्यूम राइज है, 1.9 मिलियन का वॉल्यूम है, तो आराम से 4250 रुपए तक जा सकता है। बट आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का चार्ट मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू एचडीएफसी एएमसी, क्योंकि इसमें 157 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था जो रीटेस्ट भी हुआ है। करंट वीक में हैमर कैंडल अभी तक बनी हुई है, तो अगर वीक हाइस पे क्लोज करता है तो हैमर के साथ रिवर्सल कंफर्मेशन हो जाएगा और वापस से स्टॉक 1200 रुपए की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो आउट ऑफ द टू एचडीएफसी एएमसी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट दोनों स्टॉक के चार्ट रिलेटिवली बहुत अच्छे हैं। दोनों में कंपैरेटिवली आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का स्टॉक ज्यादा अच्छा लग रहा है। ઓકે, તો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ આદિત્ય બિરલા એમસી તમને જો વધારે સરસ લાગી રહ્યું છે સરને, તો તેના પર પણ નજર રાખવાની રહેશે। એક और नैरेटिव भी सर चला है और वो है पेनी स्टॉक्स का। आप देखिए वोडाफोन की आज बहुत चर्चा हुई है मार्केट में, बड़े ही वॉल्यूम के साथ स्टॉक में एक्शन आया और 924 के हाइज बन गए आज वोडाफोन में। क्लोजिंग सर 5.93% की अपसाइड के साथ हुआ, तो ये बात तो है, लेकिन फिर भी अगर आप देखने जाएं तो एक्शन जो है वो आज थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश हुई है इस स्टॉक में। इनफैक्ट इंडस टावर्स भी आप देखें तो वहाँ पर भी तेज़ी का एक्शन था, वोडाफोन में भी था, और इसके अलावा MTNL वगैरह की भी चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखिए, अगर आप वोडाफोन आइडिया में देखें तो पहले खराब न्यूज पे तेजी से बड़े वॉल्यूम पे पिटता था और अच्छी न्यूज में बड़े वॉल्यूम पे चलता था। आज ठीक ठाक न्यूज आई, उसके बाद भी वॉल्यूम इतना राइज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो ये क्लियरली इंडिकेशन दिखा रहा है कि अब धीरे धीरे करके ट्रेडर्स का इंटरेस्ट इसमें खत्म होते जा रहा है, कि अच्छी न्यूज पे चलता है, खराब न्यूज पे लंबा पिट जाता है। तो अब ट्रेडर्स इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है काउंटर में। ओवरऑल 9 रुपए 90 पैसे तक बाउंस बैक कर सकता है, बट मेरे को लग नहीं रहा है कि इसमें बहुत कोई तेजी बन जाएगी। ये एक बार पुल बैक में भी अगर 990 जाता है तो धीरे धीरे करके 5 रुपए 70 पैसे तक डाउन साइड आ सकती है। आई वुड कम्प्लीटली अवॉइड। क्या मैं 990 तक के पुल बैक में लॉन्ग प्ले करूंगा या वहां से 5 रुपए 70 पैसे के लिए शॉर्ट प्ले करूंगा? तो मैं दोनों नहीं करूंगा, क्योंकि न्यूज बेस्ड स्टॉक है, अचानक से न्यूज आती है और आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है उसको अवॉइड कर देना। तो मेरे लिए ये स्टॉक अवॉइड की लिस्ट में ज्यादा रहेगा। सर इसी के साथ इंडस टावर्स को कैसे देखा जाए, क्योंकि वोडाफोन की सीधी इम्पैक्ट जो है वो इंडस टावर्स पर भी हो जाती है। अब यहाँ पे चार्ट्स थोड़े से सेफ लगते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर भारतीय एयरटेल का भी इम्पैक्ट आता है, तो ऐसे में देखने जाए वोडाफोन से सीधा एक डायरेक्टली इम्पैक्ट आ जाता है इंडस टावर्स पर। सर देखिए, इंडस टावर चार्ट ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि आउटराइट बाइंग की सजेशन दी जा सके। फिलहाल 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंडिंग है, उनको तोड़ के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। 2-4 सेशन लगेगा ऊपर आने में, आके सस्टेन करने में, फिर साइडवेज बेस बनाने में, फिर कहीं जाके अपसाइड मोमेंटम मेंटेन या कंटिन्यू होगा। तो फिलहाल अभी ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। जब ये रिवर्स करके अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर लेगा तब हम इस चार्ट को रिव्यू करेंगे। फिलहाल बुलिशनेस के प्राइमरी इंडिकेशन आए हैं, जब तक कंफर्म नहीं आ जाते तब तक हम अवॉइड करेंगे। ओके, सो જ્યાં સુધી કન્ફર્મ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી અવોઇડનો વ્યૂ અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે। ઇન્ડસ ટાવર્સને પણ અને વોડાફોન માટે પણ અવોઇડનો જ વ્યૂ અત્યારે ફિલહાલ સામે આવતો જોવા મળી રહ્યો છે।
नेक्स्ट स्टॉक सर आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन में रहा, वो है बीएसई। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर और उसमें टारगेट्स भी अपसाइड रिवाइज किए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ आप परफॉर्मेंस अगर इस स्टॉक की देखें हिस्टोरिकल तो बहुत ही ज़्यादा चल चुका है और ऐसे माहौल में शार्प सेलिंग आने के चांसेस रहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहते हैं। क्या कोई अपसाइड अब थोड़ा सा रिस्क बन गया है यहाँ पर? कैसे देखें सर बीएसई को, क्योंकि एनएसई आईपीओ अब कभी भी आ सकता है और ऐसे सिचुएशन में अब तक काफ़ी अच्छा चला है बीएसई। देखिए बीएसई में 49.89 पे एक ब्रेकआउट था, उसको रीटेस्ट करके चला है, स्टॉक स्विंग हाई टेस्ट कर चुका है, यहाँ से 6200 रुपए जा सकता है, लेकिन 6th स्टेज के बाद का ब्रेकआउट है तो मैं अवॉइड करने के मूड में ज्यादा हूँ, क्योंकि 6 स्टेज में लगभग 100 में से 80 ब्रेकआउट फेल होते हैं। सीडीएसएल में फेल हुआ, कैंप्स में फेल हुआ, आपका कल्याण ज्वेलर्स में फेल हुआ, बहुत सारे स्टॉक्स में फेल हुआ, इकलौता बीएसई अभी तक दिखा है जिसने फॉलो थ्रू मूव दिया है। तो माहौल जब खराब हो, जब 100 में से 80 स्टॉक फेल हो रहे हैं तो 20 में ब्रेकआउट प्ले करना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन नहीं होता है, लेकिन जिसको मोमेंटम चेज करना है 6200 रुपए तक के लिए लॉन्ग प्ले कर सकता है, नीचे 5650 का स्टॉप लॉस ले ले। बट क्या मैं लॉन्ग सजेस्ट करूंगा तो मेरी तरफ से ना रहेगा, लेट स्टेज है, मैं अवॉइड करूंगा। ક્લિયરલી અવોઇડનો વ્યૂ અહીંયા ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે અત્યારે ફિલહાલ પરિસ્થિતિ બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ તમારા માટે થઈને અને ત્યારબાદ અન્ય સ્ટોક્સ પર પણ આપણે ચર્ચા સતત કરી રહ્યા છીએ। आगे बढ़ते हैं और कुछ टॉप लूजिंग काउंटर्स पर नज़र डालें तो वहाँ पर सबसे पहले सरकारी बैंक्स में एक कॉमन थीम बना था। आज सरकारी बैंकों में हमने एसबीआई में नो डाउट बाइंग देखी है, लेकिन सामने आप देखिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक 7.5% प्रॉफिट बुकिंग, सेंट्रल बैंक 7.5% की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी देखने मिली, यूको बैंक 6.25% की प्रॉफिट बुकिंग। इसके अलावा क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण था, लेकिन उसको अगर साइड में रखें तो आईडीबीआई देखिए आप 5% की प्रॉफिट बुकिंग। मतलब एक कॉमन थीम सरकारी बैंक्स में सब जगह बाइंग ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पे जहाँ पे ओवर स्ट्रेच्ड थे उसको मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग का डंडा भी दिखाया था आज। कैसे देखे सर ये सारे प्रॉफिट बुकिंग को? क्या आपको लग रहा है जो आपने पहले भी बता रखा था सरकारी बैंक्स का या सरकारी एंटरप्राइजेस की जो थीम थी उसी हिसाब से आईओबी, सेंट्रल बैंक, सारी बैंक्स में, इवन यूको बैंक में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आज देखने मिला? ये जी आपको याद होगा ऑफ लेट भी जब भी फंडामेंटल एनालिस्ट ये कमेंट्री देते थे कि ये बैंक बहुत ओवरसोल्ड हैं, मतलब बैलेंस शीट वाइज बहुत स्ट्रांग है, धंधा बढ़ रहा है और मतलब तमाम तरह के आर्गुमेंट, मैं बार बार ये कह रहा था कि अगर ये सब इतना ही अच्छा है जितना बता रहे हैं तो इनके चार्ट क्यों नहीं अच्छे दिख रहे हैं, इनमें बाइंग पैटर्न क्यों नहीं दिख रहा है। अप कैंडल्स पे वॉल्यूम कम है, डाउन कैंडल्स पे वॉल्यूम ज्यादा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्यों दिख रहा है। अगर इतना ही सब चीज अच्छा है तो एक्यूमुलेशन पैटर्न दिखना चाहिए। और आप देखिए धीरे धीरे करके पूरी स्टोरी फिजल आउट हो गई, स्टॉक्स पिटना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ से भी कहीं 20-25% स्टॉक टूट जाए मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। और बजट के आसपास या तो एक आध हफ्ते पहले या बजट के दिन या बजट के एक आध हफ्ते बाद ये काउंटर्स अगर यहाँ से 20 से 25% नीचे मिले तो बहुत સરપ્રાઈઝ નહીં હોના चाहिए। ક્લિયરલી સો વ્યૂ તમને આ પ્રમાણે સરકારી બેંક્સમાં જે પ્રોફિટ બુકિંગ આવ્યું છે તેમાં જોવા મળી રહ્યું છે। और एक सेक्टर तो नहीं कहूँगा, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आज देखने मिली वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स इसलिए क्योंकि 7% से ज़्यादा गिरा, इससे पहले टाइटन वगैरह में भी प्रॉफिट बुकिंग था। सो ओवरऑल थोड़ा सेगमेंट वाइज प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर। अब गोल्ड प्राइसेस थोड़े एलिवेट ज़रूर हो रहे हैं, मे बी उसका इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि 7% का प्रॉफिट बुकिंग। और कल्याण आपको याद होगा सर रिजल्ट के बाद भी हेवी पनिशमेंट इसको मिली थी और आज भी शायद हेवी पनिशमेंट फिर से एक बार मिली है। 7% की प्रॉफिट बुकिंग 600 पे आ गया है सर स्टॉक। देखिए ये जी आपको याद होगा जब ये 786 पे ब्रेकआउट दे रहा था मैं बार बार यही चीज कह रहा था, 6th स्टेज का बेस ब्रेकआउट है, आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। कैंप्स में फेल हुआ है, सीडीएसएल में फेल हुआ है, बीएससी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फेल होगा लेकिन बीएससी में चल गया। कल्याण ज्वेलर्स चौथा स्टॉक निकला जो 6th स्टेज का बेस ब्रेकआउट फेल किया है, वहां से वर्टिकली लॉन्ग लिक्विडेशन में पहला टारगेट 514 है जो प्रोबेबली मतलब ऑलमोस्ट आज हल्के से रह गया है, नहीं टच कर ही गया था। बट यहाँ से भी बाउंस बैक में आपको एक बार 630-632 मिलने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। बट नेक्स्ट लेग में जब भी ये 514 रुपए तोड़ेगा सीधा 335 रुपए का टारगेट बनेगा। क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी आपको याद होगा मैं 4 हफ्ते से कह रहा हूँ ये वहां पे खड़े हैं जहाँ पे बजट के टाइम पीएसयू स्टॉक्स खड़े थे, सब में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है। 40-50% का करेक्शन बहुत आराम से आ सकता है स्टॉक्स में और 20-20% आ ही चुका है।
बजट के बाद 30% और आके अपने ऑल टाइम हाई से 50% ये करेक्ट कर जाएंगे। ઓકે સો વ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી કલ્યાણ જ્વેલર્સમાં બનતો જોવા મળી રહ્યું છે, નજર રાખીશું। અને और एक स्टॉक अंशुल जी जहाँ पर हैवी प्रॉफिट बुकिंग आज देखने मिली थी वो था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। 5.5% की प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में देखने मिली। कल काफ़ी ज़्यादा बाइंग आई थी, जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा दोनों में ही बाइंग आई थी। आज पर्टिकुलरली ओलेक्ट्रा अगर आप देखें तो हैवी सेलिंग आज हमें देखने मिल रही है। कैसे समझें सर इस काउंटर को? ओलेक्ट्रा ग्रीन 1421 के आज के डेज लो बने, लेकिन फिर भी डेज हाई के नज़दीक की क्लोज है, मतलब आज के लो में से काफ़ी अच्छी बाइंग भी हमें देखने मिली है ओलेक्ट्रा ग्रीन में। देखिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन प्रीवियस विनर रहा है और फरवरी 2024 में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 2200 रुपए में। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 50% जनरली स्टॉक गिरता है तो 1100 रुपए का टारगेट बनता है, लगभग 1250 से पलटा है। पुल बैक में 1560 तक जा सकता है जहां बॉक्स का लो था, तो वही रिटेस्ट करने जा रहा है। 1560 से सेलिंग आएगी तो ये स्टॉक में बहुत आराम से 1100 और फिर 950 रुपए तक की डाउनसाइड आ सकती है, तो रैलीज पे एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके सो घटाડામાં પછી અહીંયાથી ખાસ હવે પરિસ્થિતિ આ પ્રમાણે રિવ્યૂ આપણે ध्यान पर રાખવાના રહેશે। ओके आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स जिनमें थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं उसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। और उसमें आता है सर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। अगेन ये जो सेक्टर हमने डिस्कस किया था उसी में से है, लेकिन फिर भी मोतीलाल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज देखने मिली 3% आसपास की। 855 से 914 की रेंज बनी है, 867 की आज की क्लोज हमें देखने मिली। कैसे देखें सर मोतीलाल ओसवाल को? देखिए, मोतीलाल ओसवाल में अगर आप देखें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के लो पे फेलियर के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। बॉक्स का लो है 848, जैसे ये स्टॉक 840 के नीचे निकलेगा 848 1026 के बॉक्स का ब्रेकडाउन आ जाएगा, 691 रुपए का टारगेट ओपन अप हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि जिनके पास है वो एग्जिट का प्लान करें। તો રિવ્યૂ આ પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યું છે, નજર રાખવાની રહેશે। આગળ વધીએ, બીજા સ્ટોક્સ જે બ્રોકરેજ રિપોર્ટ્સના હિસાબથી એક્શનમાં હતા તેમાં આજના દિવસે 2-3 જગ્યાએ ખાસ સલાહ બનતી જોવા મળી છે અને તે છે HCL ટેક। HCL टेक पर सर रिजल्ट के बाद काफ़ी हैवी प्रॉफिट बुकिंग आई। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं यहाँ पर होल्ड या ऐड के रेटिंग दिए गए हैं उन्होंने, लेकिन जिस प्रकार से चार्ट्स पूरी तरह से ख़राब हो गए थे और आज आपने देखा हो तो लास्टली आईटी स्टॉक्स में थोड़ा डिफेंसिव बाइंग आई भी है। सो आईटी हमेशा हम देखते हैं कि जब इंडेक्स में कुछ मूव आनी होती है उसको लीड करता है हमेशा, और आज आईटी में जो बाइंग आई और लास्ट में HCL टेक में थोड़ी सी बाइंग आई है, उसे कैसे देखें? चार्ट ऑब्वियसली कल की मूव की वजह से डिस्टर्ब हो चुके हैं HCL टेक में, लेकिन फिर भी कैसे देखा जाए सर आने वाले वक्त के लिए? देखिए, एग्जैक्टली जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया कि कल चार्ट जिस हिसाब से डैमेज हुआ है और बड़े वॉल्यूम के साथ डैमेज हुआ है। 12.8 मिलियन का वॉल्यूम था इस बड़ी सेलिंग में, जो कि 516% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज और ऑलमोस्ट 8.84% का कट था। तो चार्ट तो डैमेज है, मेजर सपोर्ट 1705 पे है, वो लेवल टेस्ट करने के लिए स्टॉक नीचे आ सकता है। 1705 अगर प्रोटेक्ट हुआ तो बेस बना के ऊपर चलेगा, लेकिन अगर टूटता है तो फिर यहाँ पे डाउन साइड गहरा आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए अगर आपके पास लॉन्ग है तो पुल बैक में एग्जिट करने की सोचना चाहिए आपको। પુલ બેકમાં એક્ઝિટનો રિવ્યૂ અહીંયાથી ખાસ લેવાની સલાહ તમને બનતી જોવા મળી રહી છે। HCL ટેક ફાઇનલી આજે થોડું બાઇંગ તમને આવતું જોવા મળેલું હતું। इसके अलावा क्रूड प्राइसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं सर। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर मल्टीपल रिपोर्ट्स आए हैं और उसमें सबसे पहले अगर आप डायरेक्टली रिफाइनिंग के ऊपर देखें तो ONGC और ऑयल इंडिया हैं। क्रूड के प्राइसेस थोड़े से बढ़ने शुरू हुए हैं और इन दोनों पे बाइंग की रेटिंग दी गई है MK की ओर से। क्या आपको लग रहा है ONGC ऑयल इंडिया आने वाले वक्त के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रिव्यू दिखा सकते हैं? देखिए, स्टॉक डिस्कस करने से पहले हम प्राइमरी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्रूड ऑयल, अपने WTI क्रूड जो है वीकली स्विंग हाई 78 पे आके रिजेक्शन दे रहा है नाइमेक्स के चार्ट पे। तो यहाँ से मोस्ट लाइकली डाउनसाइड फॉलो थ्रू मूव करना चाहिए कहीं भी 72 से $74 तक, और उसके बाद वापस हम $67-66 देख सकते हैं। तो क्रूड में रैली कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से डाउनसाइड ज्यादा दिख रही है। तो ये जितनी भी रिफाइनिंग कंपनी है इन पे थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, लेकिन पहले इतनी पिट चुकी हैं कि वो फैक्टर इन कर चुकी हैं लोअर प्राइजेस, तो उनमें बहुत ज्यादा पिटाई नहीं होगी। लेकिन हायर प्राइजेस जो फैक्टर इन हुई हैं इसमें सॉरी लोअर प्राइजेस जो फैक्टर इन हुई हैं IOC, HPCL, BPCL में
इनके पास अगर वापस से ये डाउन मूव आती है तो यहाँ पे एक इनको स्ट्रक्चरल रिवर्सल मिलेगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी, तो इन काउंटर्स में तेजी डेवलप हो सकती है। तो आईयूसी हमको बहुत अच्छा लगता है, करंट मार्केट प्राइस से लेके 1.5-2 साल के लिए अगर आप छोड़ते हैं तो 225 रुपए तक का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। ઓકે, તો આગળ જતા તમને આ લેવલ્સ બનતા જોવા મળી રહ્યા છે. નજર રાખવાની રહેશે આઈઓસી અને ઓએનજીસી અને ક્રૂડ સાથે જોડાયેલા બધા જ સ્ટોક્સ કે જેના પર તમારે નજર રાખવાની રહેશે. आज स्पेशलिटी केमिकल्स पर भी एक रिपोर्ट आई थी और उसमें एक स्टॉक बोला गया है यूपीएल, जो स्पेशलिटी केमिकल्स में सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है. अब पूरे सेक्टर पर पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है सर, लेकिन यूपीएल को पसंद किया गया है क्योंकि उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो मेंटेन होती रहेगी. कैसे देखें सर यूपीएल को, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए चार्ट अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे 10, 20 डे 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन देके कैचअप किया है स्टॉक ने, तो ऊपर में कहीं भी 600-650 तक के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं. किसी के पास है तो होल्ड कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकता है. स्टॉप लॉस ले लीजिए 525 रुपए का, तो यहाँ 20 से 25 रुपए की रिस्क रहेगी, 75 से 100 रुपए की अपसाइड मिल सकती है. 75 થી 100 સુધી આગળ જવાની કોશિશ કરી શકે છે સ્ટોક. નજર તમારે અહીંયાથી ખાસ રાખવાની રહેશે. और लास्टली सर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप के चार्ट्स एक बार देखना चाहूँगा आपके साथ, क्योंकि हमने प्राइमरी मार्केट की क्लोज पर तो नज़र डाल दी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ये जो 2 दिन की बाइंग आई है, बहुत बड़ी गिरावट को पॉज मिला है, उसके चार्ट्स को हम कैसे देखें यहाँ पर आगे, क्योंकि बहुत बड़ी पनिशमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप को आ चुकी है और आपने पहले इंडिकेट किया भी था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हैवी आएगी. अब क्या ये ब्रेक लगा हुआ है, थोड़ा कंसोलिडेशन के एक्सपेक्टेशंस आप रखेंगे? देखिए ये जी यही सबसे बड़ी दिक्कत है. आप मिड कैप स्मॉल कैप देखना चाहते हैं, मैं मिड कैप स्मॉल कैप देखना ही नहीं चाहता हूँ. पिछले 3 महीने से मैं मना कर रहा हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप से आप बहुत दूर रहिए. यहाँ पे ब्लड बात देखने के लिए मिल सकती है और अगले 2 महीने भी मेरे को कोई भी इसमें रिलीफ नहीं दिख रही है. अगर किसी तरह का रिलीफ आना भी है तो आप मान के चलिए कि मार्च के बाद से आएगा, जब लॉस हार्वेस्टिंग और ये सारी चीजों का भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, तब कहीं जाके अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टॉक ये इंडेक्स कुछ स्टेबल होना स्टार्ट होंगे. उसके पहले भी अभी बहुत पेन बचा हुआ है. ये तो मार्केट ग्रॉसली ओवरसोल्ड हो गया, इसलिए थोड़ा सा ये रुक गए हैं, पुल बैक दे रहे हैं. बट पुल बैक सबसे पहले मिड कैप स्मॉल कैप में फिजल आउट होगी, उसके बाद कहीं जाके लार्ज कैप में फिजल आउट होगी. तो गिरने में मिड कैप स्मॉल कैप एकदम आगे रहेंगे, रिकवरी में एकदम पीछे रहेंगे. तो फिलहाल अभी 2-3 महीने और मिड कैप स्मॉल कैप से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है. હજુ પણ દૂર રહેવાની સલાહ મિડ કેપ સ્મોલ કેપથી નજર રાખવાની રહેશે. और अंशुल जी इसी के साथ वक्त हो चला है विदा लेने का. जितनी भी हमने बातचीत की है उसके डिस्क्लोजर्स. देखिए रिलायंस और बैंक बीच मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, बाकी स्टॉक्स क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं, बट मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है. मेरे पोर्टफोलियो में केवल और केवल रिलायंस है. रिलायंस के पुट शॉर्ट हैं और डिलीवरी बेस्ड बाइंग की हुई है, पुट शॉर्ट किया हुआ है, और बैंक 20 जो बैंक निफ्टी का ETF है वो खरीद के रखा हुआ मैंने. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आज की पूरी डिस्कशन में बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. તો ભારતીય માર્કેટ્સ આજે લીલા નિશાનનું ક્લોઝ ફાઇનલી બતાવ્યું છે, રાહતનો શ્વાસ લેવાની કોશિશ કરી છે. હા, એકદમ પાતળી સરસાઈથી ક્લોઝ છે, એટલે કે ગઈકાલના જે તેજી, મોટી તેજી આપણને જોવા મળી તે બાદ નાનકડી મજબૂતી નિફ્ટીમાં છે. બેંક નિફ્ટીએ પણ એકદમ પાતળી સરસાઈથી મજબૂતી બતાવી, પણ હા મિડ કેપ સ્મોલ કેપમાં તેજી જરૂર આવી છે, પણ જેમ અંશુલ સર કહી રહ્યા હતા કે હજુ પણ રિસ્ક ઘણું બધું અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે. નજર તમારે સૌ કોઈએ અહીંયા પણ બનાવેલી રાખવાની રહેશે. આ સાથે જ આ શોમાં પણ હાલ બસ આટલું જ. મને યશના રજા. આગળના અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ ગુજરાત. क्लोजिंग कैपिटल प्रेजेंटेड बाय ट्रेडबुल्स. अब ट्रेडिंग सबके बस की बात है. को पावर्ड बाय नेट प्रोटेक्टर. प्रोटेक्ट योर डिजिटल लाइफ.